Friends, today we will find potential in an external field due to single point charge. Okay, so there is an external electric field E is shown, and we have taken a point charge plus Q1 from infinity to point P, which is at an external electric field. Okay, this is an external electric field E, and we have taken a point charge plus Q1 from infinity to point P, which is at an external electric field. Assumption: potential is at infinity is 0. I think you know very well. And electric field of Q1 doesn't bother capital E. It means the electric field produced by plus Q1 is negligible compared to the external electric field capital E. Okay, now work done to bring a charge Q1 from infinity to P. So we know W is equal to VQ. So here Q is Q1, here Q is Q1, W is equal to हो जाएगा Q1 VP minus V infinity. V infinity is 0, so Q1 into VP. Potential energy is equal to Q1 into VP, so potential energy is equal to Q1, और VP की जगह क्या लिख देंगे VR. एक्चुअली हम R इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम R को एक पोजीशन वेक्टर, हमें क्या करना है, हमें पोजीशन वेक्टर लिखना है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये पोजीशन वेक्टर है P. ठीक, तो O से P तक की डिस्टेंस क्या है, R. तो VP की जगह हम VR पुट कर रहे हैं, तो P इज इक्वल टू Q1 इंटू VR. सो R is the position vector of point P, so potential energy Q1 into VR. Okay, here is the potential energy, here is potential energy, correct it, it is potential energy. Okay, now we will find potential energy in an external field due to system of two charges. Okay, so now system of two charges, it means first we have taken a charge Q1 from infinity to P. Now we have taken the charge Q2 from infinity to P. So U1 is the work done to bring a charge Q1 from infinity to P. That is Q1 times Vp minus V infinity. V infinity is 0, so Q1 into Vp, and Vp is VR1. Vp is VR1. I think Vp is VR1. So U1 is equal to Q1 into VR1, and U2 work done to bring Q2 from infinity to Q. Now this, so Q2 into VQ minus V infinity, Q2 into VQ what? VQ is VR2, this distance VR2. ओके, यहाँ पे क्या होगा, जो Q पॉइंट है यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा VQ पे, वो एक तो होगा आपका जो आप वहाँ से इन्फिनिटी से वहाँ तक लाए हो, VR2 तो होगा ही होगा. ठीक है, और प्लस क्या होगा, प्लस जो है ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट पे जो Q1 प्रेजेंट है उसकी वजह से भी एक पोटेंशियल होगा. ठीक है, यहाँ दो पोटेंशियल होंगे. ठीक है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा. तो एक तो आपका VR2 हो गया, ठीक, और दूसरा होगा VQP मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू P. ओके, तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एट आर डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R.
तो यही यहाँ पे पुट कर दिया गया है कि Q1 अपॉन R12, Q1 की वजह से R12 डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा कि Q1 अपॉन R12, तो यहाँ पे क्या प्लस VR2 तो होगा ही होगा, जैसे प्रीवियस केस में VP के केस में VR1 था तो VR2 तो होगा ही होगा, और प्लस P की वजह से Q पे जो होगा वो पोटेंशियल वो होगा आपका KQ1 अपॉन R12। तो U2 क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा Q2 टाइम्स VR2 प्लस KQ1 अपॉन R12, और यूनिट क्या हो जाएगा U1 प्लस U2। ओके, तो यूनिट इक्वल टू U1 की वैल्यू पुट करेंगे Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2 प्लस KQ1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, तो ये आपका ये प्रूव हो गया। Now the numerical part is, the first question is, a charge of 8 microcoulomb is located at the origin. Calculate the work done in taking a small charge of -2 into 10 to the power -9 coulomb from a point P 0,0,3 centimeter to a point Q 0,4,0 via point 0,6,9। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन मतलब हम इसमें कैसे जा रहा है, हम थ्रू द आर जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्क डन हमें फाइंड करना है, तो P2R एंड R2Q। Q क्या है यहाँ पे, Q की वैल्यू है 8 मिली कूलम, तो 8 इंटू 10 टू पावर -3, ये आपका ऑरिजिन पे है, O पे है, और Q0 कितना है -2 इंटू 10 पावर -9 कूलम। तो वर्क डन जो होता है आपका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन P एंड Q पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ना कि जो आपने पाथ जो आपने चले हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो वर्क डन फ्रॉम P टू Q, तो P टू Q के लिए सीधा फार्मूला है, Q0 को आपने मूव कराया है तो Q0 टाइम्स W इक्वल टू VQ। तो फाइनल पोजीशन VQ है माइनस इनिशियल पोजीशन उसकी VP थी, तो VQ माइनस VP, और VQ की वैल्यू क्या होगी KQ अपॉन OQ 5। ये जो Q है ये आपका O से कितना दूर है, फाइनल पोजीशन KQ अपॉन OQ की वैल्यू है 4। ठीक है, ऐसे ही माइनस VP, तो VP की वैल्यू KQ अपॉन OP। मैं समझ चीज़ क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब क्या करोगे, अब वही दोनों को आप ऐड कर दो, अब फाइनल रिजल्ट यही इसी से ही आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दोगे तो WD इक्वल वर्क डन जो आपका आ जाएगा 1.2 जूल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो ये आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ इसके ABCD वर्टिसेस हैं, या 1 2 3 4 वर्टिसेस हैं, इस पे चार्ज प्लेस्ड हैं +Q -Q। ठीक है, और इनकी जो साइड है वो A गिवन है। ठीक है, साइड सबकी इक्वल है। आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो लेट Q1 इक्वल टू +Q, Q2 इक्वल टू +Q, Q3 इक्वल टू -Q, Q4 इक्वल टू -Q। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि सपोज आपको ये करना होता है कि आप सबसे पहले आपने, अच्छा एक चीज़ और समझ लो, ये तो A है, ये तो आपको पता ही है। ये जो डिस्टेंस है ये सब डायगनल्स हैं, तो डायगनल्स के लिए जो स्क्वायर का डायगनल क्या होता है A√2। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि ये डिस्टेंस अगर हम बात करेंगे तो डायगनल के लिए जो डायगनल होगा वो A√2 होगा। ठीक है, देखो 1 और 2 की डिस्टेंस जो है R12 है, 2 3 की डिस्टेंस R23 है, 3 4 की डिस्टेंस R34 है, 1 4 की डिस्टेंस R14 है। तो ऐसे ही 1 3 की डिस्टेंस का R13, और
2 4 की डिस्टेंस R2 4, तो R13 और R24 ये आपके होंगे, ये देखो मैंने किया है, R12 R23 R34 ये आपके A हैं और R13 R24 क्या होंगे A√2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन जो लाए हैं, ये एक्सप्रेशन एक्चुअली जो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिराइव किया था वही है, तो एक बार हम इसको दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आप, मैंने ये बोला था कि सबसे पहले आप क्या करो कि Q1 को लेके आओ, तो Q1 को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो आपका वो 0 हो जाएगा, 0 प्लस, अब आपने क्या किया Q2 को लेके आए, तो Q1 आ गया, अब Q2 को लाए, तो Q2 को लाओगे तो Q1 इसकी वजह से कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। अब आप क्या किए, अब आप 3 वाला लेके आए, तो 3 को जब लाओगे तो आपको इसकी वजह से और इसकी वजह से आपको वर्क करना पड़ेगा, तो देखो इसमें 2 टर्म आएंगे, एक तो अब पहला करते हैं Q1 की वजह से, मतलब ये 1 की वजह से, तो K Q1 Q3 अपॉन R13, मतलब 1 की वजह से है तो K Q1 Q3 अपॉन R13 पोटेंशियल, ये R13 अपॉन R13। ठीक, अब किसकी वजह से, अब 2 की वजह से, अब 2 की वजह से ये वाला हो गया, अब 2 की वजह से, तो K Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, ये हो गया, ये 3 आपके आ गए। अब आप किसको ला रहे हो, चौथे को ला रहे हो, चौथे को ला रहे हो, तो अब क्या होगा, जब चौथे को लाओगे तो आप इसको भी कंसीडर करोगे, इसको भी कंसीडर करोगे और इसको भी कंसीडर करोगे, तो आपने पहले वाला कंसीडर किया तो K Q1 Q4 अपॉन R14 ये आया, अब 2 को कंसीडर करोगे तो K Q2 Q4 अपॉन R24, अब तीसरे को K Q3 Q4 अपॉन R34। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से वही R13 R24 की वैल्यू A√2 है, तो टोटल आप जब इस इक्वेशन वैल्यू पुट करोगे, सारे के सारे तो Q ही हैं, बाकी सब A हैं, 2 जो हैं वो A√2 हैं, ये सारी वैल्यूज जब पुट करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, KQ² अपॉन A मल्टीप्लाइड बाय -√2, और K की वैल्यू क्या है 1/4πε0। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, थैंक यू।